but the others haven't forgotten. So I can't dilate much on this as a sensitive subject. तो मेरी गुजारिश ये है कि अभी हमने जो पूरी कोशिश है हमारी इस बजट में कि वी शुड मूव द कंट्री टुवर्ड्स ग्रोथ, क्योंकि ये एक हमारा मोनोटनी टूटेगी, ये एक विशियस सर्कल है. I personally, as professional and based on my little experience, I've been like Motiwala Sahab, I've been president of Horchever as well, right back in 92, 93. I've been vice president of the Institute of Chartered Accountants, I've been council member. So मुझे profession का भी पता है, मुझे business का भी पता है. The devaluation is the mother of economic evil. Now most of our people do not understand, including many of my colleagues, in the politics. ये जब trigger होता है तो this vicious cycle starts. मैं अपने experience से बता रहा हूँ कि half of your, I'm sure many business, you are dealing with your clients, half of the, it used to be pegged by the way, open interbank market के basis के ऊपर, जिसे रीड कहते हैं, I am the one who introduced in February 99 when once we were settled down. The currency came down from 69 to 52. We started clearing the backlog. Reserves started building. So then February 1999 में we moved to this open interbank system, जो आप आज देखते हैं कि जी वो market determine करती है. तो गुजारिश ये है कि उसका जो एक system जो devaluation का है, वो जब भी होता है आधी आपका जो ओवरसीज इंपोर्टर है आपके एक्सपोर्टर से मोस्टली डिस्काउंट लेता है कि जी आपको ये गेन मिल गया, आधा डिस्काउंट दे. बाकी आधा से ज्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ लिविंग गोज अप. द गेस्टेशन पीरियड इज मे बी 6 to 8 weeks. 2 महीने में पदरा हो जाता है एंड देन द न्यू साइकिल स्टार्ट्स एंड दिस नेवर एंड्स. वो हमारा जो टूटा है, आई मीन एज लेट एज 12th of December 2017, you may Google after this Bloomberg, after this meeting, वो कहता है कि पाकिस्तान रुपी has been most stable currency since 2014, except a recent slide. तो recent slide से शुरू हो गया, left around 22nd of November 2017. उसकी एक और कहानी है कि क्यों मैंने छोड़ा. I believe in fiscal discipline. Democracy alone will not take this country off. You have to couple it with the fiscal discipline. I paid price in 98, 99. I paid price in 2022, 2017. I don't regret. I try to put now. I think people understand कि discipline के बगैर नहीं चलेगा. अगर मेरी बात 5 साल पहले मानी होती तो आज हम इधर नहीं खड़े होते जिधर खड़े हैं. All I was preaching that we should spend external resources and we should commit national external resources for future to the extent we can afford and according to the cash flow. हमने नहीं किया. आज हम खड़े हैं इधर जहाँ खड़े हो गए आगे. Is it should I be depressed and मैं दिल छोड़ दूँ? नहीं. I still have faith in God Almighty Allah. The country is assets solvent. The second other side of the picture, which you should be telling your clients who consider कि जी इधर से फलां कंट्री में चले जाएं और फलां कंट्री में जाके सेटल हो जाएं और 183 दिन वहाँ रहे. This country has a future. पाकिस्तान के अगर 100 बिलियन के डेट्स हैं, I left at 70 billion, today is $100 billion. You have trillions of dollars of assets in Pakistan. Your one asset alone, जो आपका गैस पाइपलाइन in Pakistan, one of the largest in the world, is $50 billion worth. आप अगर आज लगाएं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट. आपके रिकॉर्डिंग तो आपको मिनरल जो है अल्लाह के फजलो करम से वो तो 6 ट्रिलियन कहते हैं, मैं उसको 3 ट्रिलियन गिनता हूँ, इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग एंड अनएलोकेटेड माइंड. तो हमें काम करना है. वी हैव टू मूव दिस कंट्री. इट्स अ कलेक्टिव वर्क. हर एक को हिस्सा डालना है. क्रिटिसिज्म तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर हम सारे मिलकर करेंगे तो मेरा फेथ है हम अल्लाह पे ये वी कैन टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड. अब हमने क्या किया है इस बजट में? इस बजट में हमने बेसिकली फोकस किया है कि ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से हो सकते हैं. आई एम श्योर यू ऑल प्रोफेशनल्स यू नो वेरी वेल. आपका एग्रीकल्चर क्विकेस्ट आपको उसका रिटर्न मिलती है. आपने इस साल के ड्यूरिंग द साल भी अपनी पैकेज दिया. यू सॉ दैट दिस इज द एरिया वेयर यू गॉट द पॉजिटिव डिस्पाइट सो बैड कंडीशंस, यू स्टिल गॉट द पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ. आपकी तो सर्विस और जो मैन्युफैक्चरिंग उसको यानी एवरेज डाउन 0.29 पे ले गई है. तो उसके लिए
एक हमने एग्रीकल्चर चूज किया है, सेकंड वी हैव चोजन द आईटी सेक्टर इज अ ग्रेट पोटेंशियल। आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, ट्रिपल डिजिट ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट है, आज तक हम उसको टेक ऑफ ही नहीं करा सके। वी ट्राई टू जस्ट इंट्रोड्यूस द इंसेंटिव विच द इंडस्ट्री वांट्स, जो उन्होंने कहा है। Agriculture may be very aggressive. I'm sure you would have not repeat. I can repeat all that detail, but I'm sure you're all already aware. You would have listened to my speech. You have seen the finance bill, and everything is available. The third thing is SMEs. The backbone of the developed world economies is the SME, small and medium enterprises. Japan, Germany, जो industrial giant बने, वहाँ SMEs has taken the lead role. तो हमारा SMEs is very कमजोर unfortunately. So we have tried to push the SME जो है सेक्टर। इसी तरह हमारा चौथा फोकस कहाँ है इस बजट में कि जी हमारे जो बहन भाई हमारे जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो दे सेंड यू 90% ऑफ द एक्सपोर्ट्स को हम कितना देते हैं, प्रेफरेंस भी देते हैं, उसको लुक आउट भी करते हैं। अभी मोती वाला साहब भी वही बातें कर रहे थे। लेकिन ये जो लोग हैं इनको भी हमें रिकग्नाइज करना चाहिए एज ए कंट्री। And as of now, they are giving you almost, this almost matching to the exports. So we have given special incentives in this budget, और हमने उनको they must be recognized. They must be जो $50,000 से कम ज़्यादा एक साल में आपको भेजता है, I think you should give him some special card. There were 3 type of cards which in the past मैंने कहा चौथा कार्ड यू इंट्रोड्यूस करे, गवर्नमेंट ने फैसला किया, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया, डायमंड कार्ड दें, उनको प्रिविलेज्ड वहाँ ट्रीटमेंट दें, उनको ग्रेटेस्ट पासपोर्ट दें। क्या ग्रेटेस्ट पासपोर्ट ये चंद हम लोगों जैसे हैं? Why not give them greatest passport? Recognize them. They're contributing in your economy. उनको आप एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का लाइसेंस दें, उनको आप प्रिविलेज ट्रीटमेंट दें, दी हाई कमीशंस एंड एम्बेसीज व्हेन दे गो, यू शुड रिस्पेक्ट देम, यू गिव देम फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन एट योर एयरपोर्ट्स। सो वी आर गोइंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। इस तरह वुमेन एम्पावरमेंट इज इंपॉर्टेंट फोकस इन दिस बजट। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फोकस, ऑल्दो एजुकेशन हैज बीन डिवॉल्व सब्जेक्ट। एंड इसकी डेवोल्यूशन के साथ, इफ यू रिकॉल 18th अमेंडमेंट के साथ देयर वाज एनएफसी अवार्ड जो रिवाइज हुआ, उससे पहले द फेडरल गवर्नमेंट यूज्ड टू हैव 5% कट एज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। ये अब्दुल्ला यूसुफ बैठे हुए हैं, काटते रहे एफबीआर में बैठ के जो डिजिटल पूल होता था, और 57.5% यूज्ड टू गो टू द फेडरल गवर्नमेंट, द अकाउंट नंबर 1, 42.5 यूज्ड टू गो टू द प्रोविंसेस। सिंस यू डिवॉल्व द सब्जेक्ट, you abolished the concrete list in 2009. I was part of that as senator and parliamentary leader. तो आपकी फिजिकल स्पेस आपने की। अनफॉर्चुनेटली वो फिजिकल स्पेस तो चली गई, बट द एजुकेशन के ऊपर आप अभी भी जिस तरह खर्च होना चाहिए सूबों में वो खर्च नहीं हो रहा। एज ए कॉन्सिक्वेंस द फेडरल गवर्नमेंट हैज बीन फोर्स्ड टू कीप स्पेंडिंग। इस बजट में भी वी हैव ऑलमोस्ट 120 बिलियन रुपीज फॉर एजुकेशन, बट करना पड़ेगा। इसी तरह हेल्थ की है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज अनदर वन वेयर अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज जनरेटेड एंड इट्स पॉसिबल। वी हैव इंट्रोड्यूस सम इंसेंटिव्स देयर। एनर्जी के ऊपर वी हैव फोकस्ड आवरसेल्फ। तो ये हमारे सारे जो इंसेंटिव्स हैं, वी हैव इसके बावजूद बड़ा मॉडेस्ट हमने टारगेट रखा है कि विच इज 3.5%, करीबन तीनों एरिया, सर्विसेज, industry and agriculture, it should give us 3.4, 3.5 of detail है, but average is 3.5% GDP growth. Now मुझे अभी मैं जब आया तो मगरिब का टाइम था, तो मैंने पूछा आपके प्रेसिडेंट साहब से और तोला साहब से, मैंने कहा यार कोई लिस्ट है कि जो हमारे साथियों ने अपनी तकारीर में, अपनी डिस्कशंस में, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम ऑन जूम जिन्होंने ज्वाइन किया, कि जिन्होंने कोई अनोमलीज, कोई इश्यूज फ्लैग किए हों, तो वो लिस्ट तो कोई नहीं। I wish it was there so I could address practical, क्योंकि वो मैं लिखी लगाई तकरीर तो मैं पढ़ दूंगा, कोई मसला नहीं। I think let's be practical, it should be interactive session। तो मुझे इन्होंने एक चीज़ बताई है, उसका मैं जवाब देता हूँ। I'll open the floor। मुझे ये कहने लगे जी कि ये कह रहे हैं कि 7,200 का जो बजट इसका फेडरल टैक्सेस का जो टारगेट अभी रिवाइज एस्टिमेट है, उसके मुकाबले में हुकूमत ने बहुत ज़्यादा 9,200 का रख दिया। Now I'm amazed, ये बैठे हुए हैं फॉर्मर FBR चेयरमैन, इट इज वर्कड आउट साइंटिफिकली। आपकी अगले साल की पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो जॉइंट वर्किंग है,
वो कहती है कि पाकिस्तान में 21% अगले साल इन्फ्लेशन होगी, द फिस्कल ईयर 23-24। अब ये बाय द वे ये सीपीआई है। इस वक्त भी जो 11 महीने के नंबर्स है वो 29% है। यू नो यू रीड समवेयर 35%, 39%, वो मंथ टू मंथ इस तरह होता है। योर 11 months cumulative number is 29%. Your core inflation, which actually matters and that is more important, that is right now 16 से 17% इन देहातों में, रूरल एरियाज में, और आपके शहरों में इट इज 19 से 20, यू कैन से एवरेज 19.5। जो सीपीआई इस वक्त 29 से 11 महीने, उसके अगेंस्ट उन्होंने 21 दिया। दोस्तों कोर इन्फ्लेशन शुड बी वेल बिलो 4-5% कम से कम, इफ नॉट 8-9% इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। उस तो दैट 21% इज नंबर 1 देयर, जो हम कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको आज सिखा ही दूँ, शायद आप में से फ्यूचर में कोई चेयरमैन एफबीआर बन जाए। हाउ वी वर्क आउट द नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्शन, दिस इज 21%, एंड देन यू ऐड द ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज 3.5, ये हो गया 24.5%। और 24.5% को आप 72 से जरा लगा के फैक्टर तो निकाल लें कि क्या निकलता है। तो यू ओनली नीड अबाउट 223 बिलियन मोर ऑफ एडिशनल अमाउंट टू रीच 9,200। जी अली साहब तुसी कर रहे हो, की निकले है? यू आर क्लोज टू 9,000। नो मैं ये इतने परेशान थी, लोग ये कह रहे, मैं कि यार तुसी नहीं समझाया इन्होंने कि किस तरह कैलकुलेट होता है। सो शायद इन्होंने अभी सोचा नहीं कि ये फ्यूचर में एफबीआर में चेयरमैन लगेंगे, और जो बैठा हुआ उसको पता है, अब्दुल्ला यूसुफ को पता है। सो यू सी वी हैव अ साइंटिफिक, देन यू एक्चुअली ऐड द पॉलिसी मेजर्स, then you add the revenue measures। जनरली पॉलिसी मेजर जो हैं वो इंटरनेशनल अदारे नहीं मानते, वो कहते हैं शायद ये यू मे नॉट, फॉर एग्जाम्पल इन्फोर्समेंट, आई से कि मैं बड़ी ज़बरदस्त इन्फोर्समेंट करूंगा और मैं आपको 200-400 बिलियन अगले साल जो चोरी होता है उसको कम करूँ, दे विल नॉट एग्री, दे विल ओनली एग्री टू मिनिमम नंबर। सो अब आ जाते हैं कि कौन से 223 बिलियन के जो न्यू मेजर्स हैं, दोज मेजर्स आर नथिंग बट टू डिस्करेज डॉक्यूमेंटेशन। वी हैव टोटली अवॉइडेड कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि डायरेक्ट कोई यानी कॉमन मैन के ऊपर जिसका खुदा न खास्ता असर हो। तो हमने उसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया, और वो नंबर्स आपके पास मैंने बजट में सारे मेजर्स फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आई स्पेल्ड आउट। और बाय द वे माय बजट स्पीच एंड द फाइनेंस बिल इज अवेलेबल ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वेबसाइट। Late this afternoon we have put it on, so anybody who wishes to see the breakdown, the detail, is all available there. तो मैं समझता हूँ कि we have a very bright possibility of going back where we left. हमारा जो टारगेट है, जो डिक्लाइन था, that has stopped. अभी स्टेबिलिटी पे आए हैं, we are now stable, but we have to move towards back to the growth trajectory, from decline to stability to growth. Growth जो है वो हमें हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए मेरे नज़दीक, दैट यू रीअचीव द 2017 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यू कम बैक टू 24th इकोनॉमी टू बिगिन विद, एंड देन यू एम एट द नेक्स्ट टारगेट जो आपको प्राइस वाटर हाउस ने 2016-17 में कहा कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ G20 बाय 2030। सो ये एक हमारा होना चाहिए। यू आर प्रोफेशनल्स, प्लीज़ एजुकेट योर क्लाइंट्स, टेल योर जितने आपके राब्ते हैं, आपके साथी हैं, दोस्त हैं, इट्स ए स्प्रेड। मेरे पास जितनी चेंबर्स आई हैं पिछले 2 महीने में, फेडरेशन है, सियालकोट है, लाहौर है, फैसलाबाद, जितनी चेंबर्स आई हैं, जब मुझे मिल के जाते कहते हैं सर हम तो असी तो बिल्कुल मायूस हो गए आज ढानियां गल्लां सुन के, अज साडा दोबारा हौसला बढ़ गया। आप हौसला बढ़ाएं, यू आर प्रोफेशनल्स, यू कैन डू दैट, प्लीज शेयर विद देम। और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमको खुदा ना खास्ता को बदनीति से कर रहे हैं। हमारा मुल्क है, हमारा फ्यूचर है, और मैं जैसे आपको कहा है, मैंने आपको गिनवा दिया कि मैंने छोड़ा था $70 बिलियन इस मुल्क के एक्सटर्नल बैरूनी कर्जे थे, आज 100 बिलियन, चलो उसको ले लेते हैं। कर्जे और अदायगियाँ जो कि लाइबिलिटीज आर नॉट पेएबल बाय द स्टेट, वो जो प्राइवेट सेक्टर एक्सटर्नल अपनी कोई पे एज यू एन पे कुछ चीज़ें खरीद ली, कोई डेफर्ड पेमेंट पे खरीद, उसको भी डाल लेते हैं 130 बिलियन। भाई आपके अल्हम्दुलिल्लाह आपके 3,000 ट्रिलियन, मैंने डिवाइड 6,000 बिलियन को मैंने उसको डिवाइड किया बाय हाफ। ये आपके वर्चुअली वेरीफाइड एसेट्स हैं। सो हमें अपना भरोसा अल्लाह पे करना चाहिए। वी आर रोलिंग आउट
यू नो एग्रीकल्चर के ऊपर आने वाले आप महीनों में देखेंगे एज इसका जो टेन्योर है इस गवर्नमेंट का कि वी विल बी रोलिंग आउट वेरी मेजर इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर। मजीद ये जो इसमें दिए हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जी हम जो है वो इस मुल्क को, मैंने कल भी कहा है कि एक बॉन्डेड जो है वो स्टोरेज फैसिलिटी दे दें इसके लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आपके मुल्क में होगी तो अभी आप देखते हैं कभी कोई शॉर्टेज हो जाती है हर 2 साल 3 साल के बाद, भाई प्रॉपर्टी किसी की होगी, FPR पैसे ले नहीं सकता, ज़ाहिर है एक ज़रूर क्या उनकी तकलीफ है, पर प्रॉपर्टी विल बी हेयर, यू विल हैव अ 24 आवर नोटिस वट एवर यू नीड। लेकिन हमारी जो सिस्टम है ये इतना रिजिड और रिस्ट्रिक्टिव है कि ये ब्लॉकेट्स क्रिएट करता है। So we have made up our mind this comment that we have to introduce this you know bonded storage facility for the petroleum products, और इंशाल्लाह we you'll see कि हम इसको बड़ी जल्दी करेंगे और hopefully next you know before 30th June inshallah. I'm after it as chairman of the economic coordination committee of the cabinet. हाँ, हम sovereign wealth fund inshallah लाएंगे। The countries, Indonesia was in a very bad shape few years back. Egypt is not out of crisis. The both countries have set up their sovereign wealth fund. I don't know how many of you would have known कि पाकिस्तान कितना एसेट सॉल्वेंट है। भाई 130 बिलियन की लायबिलिटीज है, 3000 बिलियन के एसेट तो मैं आपको गिनवा रहा हूँ। हाउ मेनी टाइम्स यू नीड, सो ये हमारी लिक्विडिटी क्रंच है, कौन कहता कि नहीं है। दैट वी हैव टू ऑनरेबली डिग्निफाइड तरीके के साथ, बजाय हम जाएं अपना कशकोल लेके जी हमें माफ़ कर दे, जिसको हेयर कट कहते हैं दुनिया में, या हम दे नहीं सकते इसको, ये कर दे वो कर दे, ये डिग्निटी नहीं है। जब हमारा पोटेंशियल है, हमारे पास अल्लाह ने दिया, हमें उसकी तरफ करना चाहिए, हम अब उसको एक्सप्लोर करें। तो मैं समझता हूँ कि आप मेहरबानी करके ये प्लीज़ फॉर द कंट्री से आप ये ज़रूर अपनी जिम्मेदारी को चंद हफ्ते में चंद घंटे ही खर्च करें, लोगों को बताएं, लोगों को आप उम्मीद दें, लोगों को बताएं भाई कहीं पाकिस्तान इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, हम इंशाल्लाह विल टेक ऑफ। तो इसी तरह आपकी जितनी बिजनेस कम्युनिटी की जो एक कॉमन डिमांड थी, मोस्ट ऑफ द चेंबर्स वुड रेज इट व्हेन दे मेट मी इन द लास्ट फ्यू वीक्स कि जी वो आपको याद होगा हमने उनको एक दिया हुआ था कि जी अपने एक साल में आप एक्स अमाउंट 10 मिलियन रुपीज़ होता था इफ़ यू रिकॉल, मैं सेक्शन 411 सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो वो होता था, वो बिजनेस पीपल है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, वो अवेल करते थे। वो जो आते थे कहते हमारा तो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, रुपए की वजह से दुगना तिगना हो गया है, हमारे पास कोई फैसिलिटी भी नहीं है कि हम, जाहिर है कि थोड़ा बहुत होता है जी, मैं यू नो बेटर देन आई एम आउट ऑफ प्रोफेशन सिंस 1980, सो मुझे नहीं पता कि आजकल क्या क्या वहाँ क्या कहते हैं फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, ये कोई वो दैट इज़ योर सीक्रेट्स, आई एम आउट ऑफ इट नाउ ऑलमोस्ट 43 ईयर्स अगो। लेकिन वो उनकी ये डिमांड थी और वो आने वाले जो गवर्नमेंट थी पिछली, उसने उसको और आधा कर दिया, 5 मिलियन कर दिया। दूसरी तरफ जब ये 10 मिलियन था तो उस वक्त द डॉलर वाज 102-103 रुपीज, तो वर्चुअली इट वाज $100,000। टुडे एट द करंट रेट इज $17,000। तो मैंने देखा कि ये कॉमन चेम्बर्स की और बिजनेस जो है जो एसोसिएशन हैं उनकी डिमांड है, तो हमने उसको रिवाइव कर दिया ओरिजिनल, which was $100,000. So in any fiscal year, so you tell your clients, anybody who wishes to avail it, 30 जून से पहले आप इस्तेमाल करें, आप लाएं, no question, it's totally legal, it's guaranteed in the income tax ordinance, the law has been there for ages, and it's only thing we are reviving, or we are revising the old amount back, but in foreign currency what it was there. So जिसने 2 लाख लाने वो 1 जुलाई के बाद ले, अगला साल अवेल कर रहे, तो मुश्किल नहीं है। आप अपने क्लाइंट्स को प्लीज़ एजुकेट देम कि अल्लाह के फजल करम से थिंग्स विल बी ओके। आई कन्फेस कि हार्ड टाइम है, हार्ड टाइम हमने नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है, ये हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। आई डोंट हैव टू से कि 24th से 47th इकोनॉमी, दैट स्पीक्स ऑल, दिस इज द सम टोटल ऑफ द 4 years एज ए कंट्री कहते हैं, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, एज ए कंट्री we were 24th, projected to be part of G20, and landed in 4 years of misgovernance and bad policies, landed in as 47th economy. तो ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें मिलके। पाकिस्तान वैसे मैंने कहा कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो था वो दैट इज स्टॉप, स्टेबिलिटी इज फेयरली स्टेबल, वी हैव टू जस्ट मूव इट टू
now the growth trajectory, and I'm sure inshallah with our combined efforts, हम inshallah will be able to reach there. मैं I would invite, मेरा ख्याल है अगर कोई questions हो, कोई आपका कोई views हो, अगर तो कोई suggestions है तो आप लिख के भेज दें. अगर कोई ऐसा सवाल है आप चाहते हैं कि मैं अभी जवाब दूँ, मैं हाजिर हूँ. तो please, the floor is जी जी. देखिए ये बिल्कुल 45 डेज का बजट नहीं है. दो तीन चीज़ें मकबूल साहब. देखिए एक तो आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि आप अगर हुकूमत में हैं तो आपने बजट देना है. यू विल बी फेलिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एज ए गवर्नमेंट एज लॉन्ग एज यू आर इन द गवर्नमेंट टिल इवन 1st of July. It is your constitutional responsibility as a government to give the nation the budget. Number one, we have done that. I assure you कि हमने कोई ना इलेक्शन को सामने रखा है, ना हमने कोई शॉर्ट टर्म अपना को उसमें कोई वो रखा है. इसमें तभी हो सकता है ना कि हमने रेवेन्यू को ओवर प्रोजेक्ट किया. वही बात मैंने आपको सिंपलेस्ट बता दिया. उस मुझे कोई चैलेंज कर दे, ये अब्दुल्ला यूसुफ मुझे चैलेंज करे बिकॉज यू नो ही हैज़ बीन चेयरमैन अभी, एनीबॉडी एल्स. तोला साहब अब आपकी नुमाइंदगी करते हैं. मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से इनको ये जिम्मेदारी लेके दी अपना रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन विद द स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट. तो क्यों किया कि मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल लोग इसमें अपना हिस्सा डालेंगे तो वी कैन मूव फॉरवर्ड. तो इसमें एक को मैंने आपको 7200 इज द बेस, वो तो एक्चुअल है ना. डिस्पाइट इम्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्शन, डिस्पाइट लिक्विडिटी क्रंच, डिस्पाइट एक फेज में हम जो है हमने प्रायोरिटाइज किया इम्पोर्ट्स को. फूड, फार्मास्यूटिकल्स, एक्सपोर्ट्स के रॉ मटेरियल्स एंड स्पेयर्स वगैरह जो जरूरत है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के, और उसके बाद बाकी चीज़ें. सो वी आर जस्ट फॉलोइंग स्ट्रिक्टली. उसके बावजूद अगर आपकी बेस लाइन ये है और आपकी इन्फ्लेशन 21 है, 3.5 आपका ग्रोथ है, तो अभी नंबर निकाला 9,000 के पहुंच गए. 223 बिलियन के सिर्फ हमने मेज लिया, वो भी जस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए, टू डिस्करेज. फॉर एग्जांपल ये 0.6% ऑन कैश विड्रॉल ऑफ ओवर 50,000 रुपीज़, ये पहले भी था, मैं तो पहले भी लगाया था. बोनस शेयर है उस पर 10% है, तो क्यों नहीं भाई. मैं कैश डिविडेंड मुझे मिले तो कोई जीरो, उस पर मुझे 15% काट लेते, मुझे पेपर दे देते हैं, मैं जाके बेच लेता हूँ, तो उस पर क्यों ना स्टेट को पैसे मिले. लेट्स बी फेयर ना. तो इस तरह के हमने लिए हैं मेजर, जहाँ के एनॉमलीज थी, जहाँ के हमने उसको यू नो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी, जिसको कैश मिलता है, जिसको बोनस मिलता है. लेकिन ये उसके अलावा कोई ऐसी कोई इसमें नहीं है. और या तो उतना मैं कहता 10,000, और हमने जो उसकी जो अखराजात हैं उस पर वी हैव डन अ बेस्ट एफर्ट कि जी वो मैनेज रहें. आपका अगेन योर नेट इज़ दी OFD फिजिकल डेफिसिट, वो हमने 7.9 था, ये पहला साल इस हुकूमत ने ख़त्म किया तो ये 7 है, और जो अगला साल जो रखा हमने 6.54 है. अगर आपकी ग्रोथ बेहतर होती है, रेवेन्यू बेहतर कलेक्ट होता है, दैट विल फर्दर गो डाउन. आइडियली आई वुड बी वेरी हैप्पी इट वाज 6, क्योंकि फ्रॉम ऑलमोस्ट 7.8 से आई रिमेंबर आई ब्रॉट इट डाउन इन 4 years to 5.8, और वो भी ज़रबे अज़ब रद्दुल फसाद के 4 साल की फाइनेंसिंग के बाद. आपका मुल्क दहशतगर्दी का शिकार था उस वक्त 2013 में. आई रिमेंबर वी हैव द स्लोगन 3 E's. अपने इकोनॉमी को ठीक करना है, एक्सट्रीमिज्म को फिक्स करना है, और 18 घंटे की जो लोड शेडिंग होती है उसको, एनर्जी को फिक्स करना. अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड ऑल 3. एक्सट्रीमिज्म खत्म किया, इकोनॉमी पे दुनिया की 24वीं मीशत बन गए, और मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो. अभी भी मेरा ईमान है, मेरा फेथ है कि व्हेन वी विल वर्क टुगेदर विद द कंप्लीट डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, कंट्री विल गो फॉरवर्ड. और ये जो फिजिकल डेफिसिट जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक फिजिकल डेफिसिट भी ट्विन डेफिसिट कंट्री ना जी, वो फिजिकल डेफिसिट में करंट अकाउंट डेफिसिट मोर डेंजरस, क्योंकि रुपए का तो आप मैनेज कर लेंगे. अभी मैं सुन रहा था शाह साहब को, असद शाह साहब को, जी हम रुपए में भी चले जाएंगे. ओ भाई खुदा का खौफ करो यार, क्यों लोगों की नींदें आराम कर रहे हो भैया, कुछ नहीं होता. दैट इज योर ओन करेंसी. ये इतना डूम ग्रूम फैलाने का कोई फायदा नहीं है. बी रियलिस्टिक, हैव फेथ इन योर कंट्री, हैव फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी. हाँ एक्सटर्नल है, यू कांट प्रिंट डॉलर्स, सो यू हैव टू मैनेज योर एक्सटर्नल अकाउंट स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज. हमने 13.8 बिलियन जो करंट अकाउंट डेफिसिट लास्ट ईयर का था ऑफ 10 months कंपैरिजन के लिए, वो वी आर डाउन टू 3.3 ट्रिलियन. दैट्स हाउ वी मैनेज्ड.
वरना तो वहाँ तो बड़ी हैरानगी है कि ये पाकिस्तान कैसे सर्वाइव कर गया। आपके जो दुश्मन है वो तो चाहते थे आप डिफॉल्ट करें। मैं अंदर को छोड़ो, बाहर की बात कर रहा हूँ, वो तो चाहते थे खुदा न श्रीलंका बने 98 99 के, चाहते थे कि आपको वो फिर आपसे नेगोशिएट करें। व्हाट हैपेंड टू श्रीलंका? तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज नॉट श्रीलंका, इट विल नेवर बी श्रीलंका। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट फेथ है एंड इट हैज़ एवरी एस्पेक्ट ऑफ रेजिलियंस टू टेक ऑफ। और हमें सबको मिलके ये करना है और इंशाअल्लाह आई थिंक दिस ईयर इज अ टर्निंग पॉइंट। इलेक्शन हो गए मकबूल साहब, 45 ऑलमोस्ट वी हैव फ्रॉम टुडे वी हैव कपल ऑफ मंथ्स, 12 अगस्त तक ये है। उसके बाद इलेक्शन होंगे, जो अल्लाह को जिसको मंजूर है वह तो जो वो उसको जिम्मेदारी मिलेगी। हाँ, इट इज़ द प्रोगेटिव कि अगर को आता है तो चेंज करना चाहे बजट में अमेंडमेंट तो हमेशा होता है। आपने देखा कि 2018 का बजट भी जो उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट छोड़ के गई, उन्होंने फिर चेंजेस की आने वाले लोगों ने, ठीक है, इट इज़ द प्रोगेटिव, दे शुड चेंज, लेकिन डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। डायरेक्शन वही है कि अब तो हमें कोई नया कॉइन भी नहीं, कि एक जगह पे आप पहुंच चुके हैं 2017 में, यू अचीव्ड ए पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमिक कॉमिटी ऑफ नेशन। आप उस पे पहले करें, उधर वापस पहुंच जाए 24, उसके बाद सेकंड प्रोजेक्शन 20। तो कोई और भाई का कोई मोहतरमा कोई सवाल हो तो मुझे बता दें। जी जी भाई। जी देखिए, ये जो भाई ने सवाल किया, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेल डिबेटेड क्वेश्चन थ्रू आउट द कंट्री। मैं ये आपको रिमाइंड करा दूँ, पाकिस्तान इन इट्स हिस्ट्री ऑफ ऑल दीज लॉन्ग मोर देन 7 डेकेड्स, एक सिर्फ प्रोग्राम कंप्लीट किया पाकिस्तान ने, एंड दैट इज़ 2013-16 when I was finance minister. Never before, even dictators का भी ज़माना रहा है जहाँ को पूछने वाले होता, तो उस वक्त में नहीं। मुझे याद है जनरल मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज साहब के ज़माने में द प्रोग्राम कुड नॉट बी कम्प्लीटेड, दे टू वॉक अवे। यूसुफ 88 के 9वें रिव्यू से वॉक किया सी, दे लेफ्ट द प्रोग्राम नो, आई थिंक 9th था या 8th। अभी ये जो रिव्यू है, दिस रिलेट्स टू 30th of September लास्ट ईयर। ऑल 3 महीने से वो लेट आए। Behral, I invited them the moment I joined end of September, and the annual meeting के लिए मैं middle of October गया। I said please come and do the review, क्योंकि 7th 8th रिव्यू मेरे आने से पहले ये तय था, उसमें रिटर्न है MEFP में और साइड लेटर में कि अगला रिव्यू होगा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, देन 10th रिव्यू होगा फर्स्ट वीक ऑफ February, एंड 11th रिव्यू जो लास्ट होगा वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ May। So I invited them, but you can't dictate. So they came 31st of January. 9th of February tak we completed all the technical. They had huge demand. Behral, that's not fair to quote publicly, but we ended up, if you recall, 170K direct taxes. Usme there wasn't any common man's except the the cigarettes and health point of view se. So they were very, menu was only 170, but at the same time 40 billion was added for the income support fund, payment income support fund, from 360 to 400 billion. That was also part of the package. अब वो ख़त्म हो चुका है और कोई अच्छा प्रायर एक्शंस होते हैं, नॉर्मली बोर्ड मीटिंग से पहले होते हैं, वो प्रायर एक्शंस भी हमने सारे के सारे मुकम्मल कर चुके हैं भाई दी। So there is an external financing gap and nobody would understand better than you. It's very easy. Based on a calculation in early February, the Pakistan was projected to have a current account deficit of $7 billion this year ending 30th June 2023. If it was 7 billion, the financing gap, वो ये कोई नई चीज़ नहीं, हर जब प्रोग्राम में होते हैं हम ये हमेशा करते हैं, ये कैलकुलेशंस होती हैं, तो 6 billion facilities were required, a shortfall जिसे कहते हैं। That because of the delay, and we have reached now when end of May, तो end of April तक का जो हमारा current account deficit है 7 billion, it is 3.3 billion. Our estimate is because March was initial figure 654 million surplus, not deficit. Later the final figures State Bank released 750 million surplus. April initial figure is about 18 million surplus. We are still waiting for the final figure. It takes time. There is a time lag. But
according to our estimate it can't be more than 4. So अगर 4 बिलियन हो, it is not a rocket science. अगर 7 है तो 6 चाहिए, अगर 4 है तो फिर तो 3 बिलियन चाहिए. We have already given them the Saudi assurance, the UAE उन्होंने कंफर्म किया जी 2 बिलियन वो देंगे, एक ये देगा. वर्ल्ड बैंक का काफ़ी सालों से पेंडिंग एक हमारा फिस्कल रिफॉर्म का प्रोग्राम था. वी कुड नॉट कंप्लीट प्रायर एक्शंस. 4 मेजर पेंडिंग थे जिसमें सूबों से भी और फेडरल गवर्नमेंट ने काम करना था. अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 2.5 months बैक आई कंप्लीटेड एवरीथिंग. तो वर्ल्ड बैंक हैज़ कंफर्म्ड के जब IMF हो जाएगा दिल पे $450 million. उसका मैचिंग को फाइनेंसिंग है AAIB की 450 थी, लेकिन फ्लड में उन्होंने रीपर्पस करके 200 दे दिए हुए, तो 700 मिलियन ये हो गए. आपके जिनेवा प्लेजेस के जो कैश प्लेजेस है नॉट फॉर प्रोजेक्ट लोन्स वो अराउंड 350 है, तो 1 बिलियन ये हो गए. तो 4 हम कर चुके. अब इसके आगे मैं क्या कहूँ कि वो अभी भी 6 बिलियन की वो कहते हैं वो भी हो जाएगा, हो जाना था. दी अंडरस्टैंडिंग वॉज कि आधा जो होगा वो बोर्ड मीटिंग से पहले होगा जो हम कर चुके हैं, आधा बोर्ड मीटिंग के बाद होगा, बिकॉज द मार्केट्स आर सिटिंग ऑन द फेंस. वो इंतजार करिए पता क्या मसला इनका आपस में. तो वो आई मीन लेसर सेट द बेटर, लेकिन वजह कोई नहीं है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन ना होता और बोर्ड मीटिंग ना होती. लेकिन वी स्टिल बिलीव एंड आई होप कि दे आर ग्लोबल अदाराज, मल्टीलैटरल अदारे हैं, हम मेंबर हैं, कोई ग्रांट नहीं मांग रहे, हमारा राइट है. दिस इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू SDRs. तो ये थोड़ी सी डिले जो है चले, तो आई होप कि 9th रिव्यू एटलीस्ट इस महीने में स्ट्रिक्टो सेंसो हो जाना चाहिए. तो बाकी रहा आपका जो फाइनल सवाल था तीसरा कि जी व्हाट अबाउट फ्यूचर. आई थिंक इट विल बी फेयर टू लीव द डिसीजन टू दी हुज़एवर इंक्लूडिंग अस. जो इलेक्शन जीत के आए फिर वो फैसला करे अपना. वो इट विल बी अनफेयर कि मैं प्रीच करूँगा जी ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. अगर हम आएंगे तो हम अपना माइंड, वो अभी प्री मैच्योर टू शेयर. अगर कोई और आता है तो उसका अपना माइंड होगा. लेकिन इंशाअल्लाह गॉड विलिंग हम वापस आएंगे और इस पाकिस्तान को कम से कम 24 में के लेकर फिर 20 में पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद. वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बजट की बेहतरी के लिए सिफारिशात को खुले दिल से सुनेंगे. बजट में खामियों को दूर करने के लिए 2 कमेटियां तश्कील दी जाएंगी. 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थी. गुज़श्ता हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों और ख़राब कारकर्दगी के बायस हमारी मईशत 47वें नंबर पर चली गई. सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा कि जो आज के इस मुकाबले में और इस कोर्स को ग्रेजुएट करने में कामयाब हुई हैं टीमें, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं. आपको मालूम है कि दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है. मैंने जानबूझ के तब्दीली का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया. और इस बदलती दुनिया की रफ्तार इंसान की सोच से भी तेज़ रफ्तार है. मेरी नस्ल का ताल्लुक़ इंसानी तारीख़ में एक यूनिक नस्ल से है, क्योंकि मेरी नस्ल ने तख्ती और स्लेट से 5G का सफ़र देखा है. आप लोग डिजिटल एज में पैदा हुए हैं और आप भी आने वाले वक्त में इसी डिजिटल एज के अंदर इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ हालात को और इम्कानात को बदलते हुए देखेंगे. डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि अभी ये पहला इसने जो सफाई उल्टा है इनकलाब का, और अभी पूरी किताब बाकी पड़ी है. और मैं अक्सर अपनी तकरीरों में हवाला देता हूँ कि हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे, कभी कुर्रा अर्ज़ पे डायनासोर्स आबाद होते थे, और फिर ये
भी सवाल पैदा होता था कि इतने बड़े देव हैकल जो मखलूक थी वो कैसे सफ़ा हस्ती से मिट गई। तो जो economic unstable country which was declared in January बायोलॉजिस्ट 2013, हैं then वो the ये new कहते हैं inflows कि of dollars इंसानी stopped. तारीख में Now that's easiest thing to do. Then if the inflows are not there, economic unstable country which was declared in January 2013, then the new inflows of dollars stop. Now that's easiest thing to do. Then if the inflows are not there and the average ballpark figure of imports and exports can be calculated, so the prediction was 6 to 7 months default. State Bank had $6 billion reserves, 4.6 billion were to be paid out in the next 6 to 7 months. So that's what was the state of economy in January, February 2013. We were lucky, we won the election, we took the responsibility, and obviously, we tried to work hard. We didn't waste a nation's time to, make up our mind whether we'll go to IMF, we will not go to IMF. We took oath the 7th of June 2013. We presented budget on 12th of June 2013. We got the budget out in the last week of June 2013. We signed the IMF agreement on 4th of July. So, you have to move fast. The nations do not have time to waste. So, you saw that the country, which was macroeconomic unstable country, no one was willing to do business with this country, reached to a stage within a short period of 3 years that by 2016-17, by 2017, you were the 24th largest economy of the world. You were predicted by not me, not a Pakistani Adara, but PricewaterhouseCoopers. We all have a, respect for that Pakistan will join G20, the premier global economic club, by 2030. I think it would have been our national duty that we should work together and we should take Pakistan and reduce that timeline from 2030 to as much as we can. And it was possible. This is the only tenure when all the multilateral heads of institutions visited Pakistan. I'm reminding you because the people have short memories and you're too busy like I am, so it is easy to forget what happened in the last few years. World Bank President Dr. Kim came here. Your Shri Mulyani, who was the MD of the World Bank, she came here. These days she's finance minister of Indonesia. The president of Indonesia took her from the World Bank. She was, followed by the President MD of IMF. She was MD. She visited. Christine Lagarde, the MD IMF, visited. President Nakou of Asian Development Bank visited. President AIIB. Reason I'm telling you, you quote any tenure where all the heads of financial institutions visited Pakistan, and right sitting in this very much city, in Sarina or in Marriott, they had all praises for Pakistan. And what praises? That Pakistan is all set to take off. And you name the rating agencies which did not upscale the rating of Pakistan. So as a consequence of that combined national effort, I'm not taking the credit that I finance minister tha. It's a combined effort. So where we reached to a low, food inflation of 2%, 2017, CPI 4%, the policy rate, 5.5%, highest reserves. The stock exchange, which there was always stumbling blocks for a decade, not to be allowed to be demutualization and the merger, we forced to get it done. The dividend to Pakistan was that you moved to from frontier to emerging markets. You moved from 19,000, the index points on the polling day in May 2013 to you crossed 50,000 points within a period of 4 years. You became the best stock market of South Asia. You became the 5th best in the world. Your stock market capitalization went $100 billion. The 70 billion was the external debt at that time. It's a shame where we moved in the next few years. Today, our market capitalization stock changes $22 billion. We have lost more than 78 billion capital market. You see, these are challenging things. We should reflect. And I think today we have very high, budget deficit. We have a high fiscal deficit. We have inflation. We have 21% policy rate. Can we do business? You can't. So I think you have a greater responsibility. Please
I always, appeal that all professionals must dedicate little bit percentage of their time for the country's welfare as well. So, right now, it was a great challenge. We have reached from, starting from being 24th economy, the net result of, 4 years of the 2010 project was that in 2022 we reached 47th economy of the world. It's a matter of great, sadness. It should not have been. We should have been closer to the G20 now. We should have been 21st, 22nd. Your neighboring country has left UK behind by going one notch above. So you see, this is a great challenge. But I don't want to, because I'm sure you had a very hectic day. For example, abhi Motiwala sab keh rahe. Now there was 9 cent agreed tariff. Yes, there was. But the budget allocation was 25 billion. So at the same time, be fair. Where you are getting at 9 cent, maybe 150, 140 rupees, you're getting 285 rupees. You see, we can't be selfish. It's a challenging time. Rise above the selfish interest. We have to be ready to be part of this, sacrifice process. हमें पाकिस्तान को से बाहर निकालना है. कोई alone नहीं निकाल सकता. It was a very brave decision on the part of the present government that last year it was a very easy thing. Everybody knew where the ship is going. It was a very brave thing, and they have lost a lot of political capital. The country was landed by undoing, not only not performing, but undoing what has been done on the account of sovereign commitments with the multilateral donors, particularly IMF in 2019. Can you afford that? No. Your credibility was eroded. There was no trust anymore in the system. So, the things have become very difficult. और ऊपर से geopolitics है. दुनिया इस वक्त ग्लोब में बहुत pulls and pushes हो रही. Obviously, countries are trying to leave other countries behind. So उसको हम आज नहीं टच करते. लेकिन क्या ये मुल्क आगे जा सकता है? मेरे नज़दीक बिल्कुल जा सकता है. You see, as we should have, hope, and we should try our best. ये अभी जो ये है ना जी, यानी फियर फैलाने वाली बात और एक घबराने वाली बात, उससे काम नहीं चले. It is no different than 98-99, by the way. The first time I took the responsibility from Commerce Minister as Finance Minister was after the detonation. पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास $414 million थे उस दिन. I'm talking 6 November 1998. Pakistan rupee had touched 69 rupees in the open market. क्या उस वक्त सर्वाइवल का चांस था? द होल, आपका ख्याल है कि आप एक न्यूक्लियर कुव्वत बन रहे थे एंड आपको वेस्ट ने मुबारक की तारें भेजनी थी, आपको भूखे भेजने थे अपने एम्बेसडर्स के लिए? ऑफ कोर्स नॉट. दे वर अप देयर इन आर्म्स टू टीच यू अ लेसन. $2 billion की उस वक्त 6 नवंबर तक लायबिलिटीज एक्यूमुलेट हो चुकी थी. रॉयल्टीज, शिपिंग लाइन्स, एयरलाइंस, मल्टीनेशनल पेमेंट्स. भी अल्लाह ने हिम्मत दी, हमने सर नीचे करके काम किया. वी क्लियर द 2 billion. We took the $414 million to 2.399 billion reserves. उस वक्त तो इम्पोर्ट ही आपकी $8.5 billion की थी. It was more than three months. तो I have a very strong faith. This country has a resilience. This country has a future. तो हमें सबको हिस्सा डालना है ना. ये नहीं है कि मैं बैठ के मैं क्रिटिसाइज तो कर लूँ कि फलां ने ये किया, फलां ने ये किया. हैव टू ऑल्सो मेक एफर्ट्स टू गेट द कंट्री आउट ऑफ दिस जैम, जहाँ हम फंस गए हैं. तो ये कंट्री हैज़ ए ग्रेट रेजिलियंस एज ए सेड. अभी हमें किधर जाना है वो हमने कोशिश की है इस बजट में कि जो 0.29% पे आपकी जीडीपी ग्रोथ गई है. अभी वो कमेंट सुन रहा था मैं अपने भाइयों का, व्हेन आई जस्ट वॉक्ड इन. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी इंपोर्ट्स कॉन्टेक्ट हुई. यस, व्हाट चॉइसेस यू हैव, व्हाट चॉइसेस यू हैव. जब आपको विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान सुबह शाम ये कहा जाएगा कि डिफॉल्ट हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेचारे बिजनेसमैन को आप कैसे ब्लेम करेंगे? वो दे गेट डिसहार्टेंड. Obviously, they tried, many of them have moved, according to my information, out of country. तो ये एक choice थी. World also was expecting that we would default. They may be surprised today why Pakistan doesn't default.
This government decided, particularly when I came back, there was a plan to go to multilateral donors for the debt restructuring and rescheduling. I said nothing doing. There was a plan to go 2 years extension in the maturity of the bond, which was coming to in December 2020. I said nothing doing. We should behave with dignity. We are a sovereign country. तो उसके लिए फिर आपको तकलीफ तो करनी पड़ी ना. Obviously, who would know better than you all chartered accountants that how to manage your finances? अगर एक घर में तकलीफ आ जाती है, एक बिजनेस में आ जाती है, एक इंडस्ट्री में आ जाती है, तो यू मैनेज अकॉर्डिंग टू कैश फ्लोस. और वो क्या था, वो ये था कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के सॉवरन कमिटमेंट्स एंड लायबिलिटीज है वो मस्ट बी पेड ऑन टाइम. This was the item and priority number 1 in the last over 7 months I have been here as fourth time finance minister. I was asked and I have taken this challenge. It wasn't, I knew that where we are standing and the things when I went in the Ministry of Finance were much deeper problem than I could see from a distance. तो बात ये है कि अभी क्या अगर हम नहीं करें तो कौन करेगा? वो तो लोग खुश होंगे. Your being a nuclear power, your being a missile power hasn't been digested by most of the world. Maybe some Islamic world happy that their brother is a lead country and has this capability, but the others haven't forgotten. So I can't dilate much on this as a sensitive subject. तो मेरी गुजारिश ये है कि अभी हमने अभी जो पूरी कोशिश है हमारी इस बजट में कि वी शुड मूव द कंट्री टुवर्ड्स ग्रोथ, क्योंकि ये एक हमारा मोनोटनी टूटेगी, ये एक विशियस सर्कल है. आई पर्सनली as professional and based on my little experience, I've been like Motiwala Sahab, I've been president of Hot Chamber as well, right back in 92-93. I've been vice president of the Institute of Chartered Accountants, I've been council member. So मुझे प्रोफेशन का भी पता है, मुझे बिजनेस का भी पता है. The devaluation is the mother of economic evil. Now most of our people do not understand, including many of my colleagues in the politics. ये जब ट्रिगर होता है तो this vicious cycle starts. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि half of your, I'm sure many business, you are dealing with your clients, half of the, it used to be pegged by the way, open interbank market के basis के ऊपर, जिसे रीड कहते हैं. I am the one who introduced in February 99 when once we were settled down. The currency came down from 69 to 52. We started clearing the backlog. Reserves started building. So then February 1999 में we moved to this open interbank system, जो आप आज देखते हैं कि जी वो market determine करती है. तो गुजारिश ये है कि उसका जो एक सिस्टम जो डिवेल्यूएशन का है, वो जब भी होता है आधी आपका जो ओवरसीज इंपोर्टर है आपके एक्सपोर्टर से मोस्टली डिस्काउंट लेता है कि जी आपको ये गेन मिल गया, आधा डिस्काउंट दे. बाकी आधा से ज्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ लिविंग गोज अप. द गेस्टेशन पीरियड इज मे बी 6 to 8 weeks. 2 महीने में 15 हो जाता है एंड देन द न्यू साइकिल स्टार्ट्स एंड दिस नेवर एंड्स. वो हमारा जो टूटा है, आई मीन as late as 12th of December 2017, you may Google after this Bloomberg, after this meeting, वो कहता है कि Pakistan rupee has been most stable currency since 2014 except a recent slide. तो recent slide से शुरू हो गया, left around 22nd of November 2017. उसकी एक और कहानी है कि क्यों मैंने छोड़ा. I believe in fiscal discipline. Democracy alone will not take this country off. You have to couple it with the fiscal discipline. I paid price in 98, 99. I paid price in 2022, 2017. I don't regret. I try to put now, I think people understand कि discipline के बगैर नहीं चलेगा. अगर मेरी बात 5 साल पहले मानी होती तो आज हम इधर नहीं खड़े होते जिधर खड़े हैं. All I was preaching that we should spend external resources and we should commit national external resources for future to the extent we can afford. And according to the cash flow. हमने नहीं किया, आज हम खड़े हैं इधर जहाँ खड़े हो गए आगे. Is it should I be depressed and मैं दिल छोड़ दूँ? नहीं. I still have faith in God Almighty Allah. The country is assets solvent.
the second other side of the picture which you should be telling your clients who consider कि जी इधर से फलान कंट्री में चले जाएं और फलान कंट्री में जाके सेटल हो जाएं और 183 दिन वहां रहे. दिस कंट्री हैज अ फ्यूचर. पाकिस्तान के अगर 100 बिलियन के डेट्स हैं, आई लेफ्ट एट 70 बिलियन, टुडे इज $100 billion. यू हैव ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स इन पाकिस्तान. योर वन एसेट अलोन, जो आपका गैस पाइपलाइन है इन पाकिस्तान, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इज $50 billion वर्थ. आप अगर आज लगाएं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट. आपके रिकॉर्डिंग तो आपको मिनरल जो है अल्लाह के फजलो करम से वो तो 6 ट्रिलियन कहते हैं, मैं उसको 3 ट्रिलियन गिनता हूं, इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग एंड अनएलोकेटेड माइंड. तो हमें काम करना है. वी हैव टू मूव दिस कंट्री. इट्स अ कलेक्टिव वर्क. हर एक को हिस्सा डालना है. क्रिटिसिज्म तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर हम सारे मिलकर करेंगे तो मेरा फेथ है हम अल्लाह पे, वी कैन टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड. अब हमने क्या किया है इस बजट में? इस बजट में हमने बेसिकली फोकस किया है कि दी ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से हो सकते हैं. आई एम श्योर यू ऑल प्रोफेशनल्स, यू नो वेरी वेल, आपका एग्रीकल्चर क्विकेस्ट आपको उसका रिटर्न मिलती है. आपने इस साल के ड्यूरिंग द साल भी अपनी पैकेज दिया. यू सॉ दैट दिस इज द एरिया वेयर यू गॉट द पॉजिटिव, डिस्पाइट सो बैड कंडीशंस, यू स्टिल गॉट द पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ. आपकी तो सर्विस और जो मैन्युफैक्चरिंग उसको यानी एवरेज डाउन 0.29 पे ले गई है. तो उसके लिए एक हमने एग्रीकल्चर चूज किया है. सेकंड, वी हैव चोजन द आईटी सेक्टर इज अ ग्रेट पोटेंशियल. आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, ट्रिपल डिजिट ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट है. आज तक हम उसको टेक ऑफ ही नहीं करा सके. वी ट्राई टू जस्ट इंट्रोड्यूस द इंसेंटिव विच द इंडस्ट्री वांट्स, जो उन्होंने कहा है. Agriculture may be very aggressive. I'm sure you would have not repeat. I can repeat all that detail, but I'm sure you're all already aware. You would have listened my speech. You have seen the finance bill, and everything is available. The third thing is SMEs. The backbone of the developed world economies is the SMEs, small and medium enterprises. Japan, Germany, जो industrial giant बने, वहाँ SMEs has taken the lead role. तो हमारा SMEs is very कमजोर unfortunately. So we have tried to push the SME जो है सेक्टर. इसी तरह हमारा चौथा फोकस कहाँ है इस बजट में कि जी हमारे जो बहन भाई हमारे जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो दे सेंड यू 90% ऑफ द एक्सपोर्ट्स को हम कितना देते हैं, प्रेफरेंस भी देते हैं, उसको लुक आउट भी करते हैं. अभी मोती वाला साहब भी वही बातें कर रहे थे. लेकिन ये जो लोग हैं इनको भी हमें रिकग्नाइज करना चाहिए एज ए कंट्री. And as of now, they are giving you almost, this almost matching to the exports. So we have given special incentives in this budget, और हमने उनको they must be recognized. They must be जो $50,000 से कम ज़्यादा एक साल में आपको भेजता है. I think you should give him some special card. There were 3 type of cards which in the past मैंने कहा चौथा कार्ड यू इंट्रोड्यूस करे. गवर्नमेंट ने फैसला किया, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया, डायमंड कार्ड दें, उनको प्रिविलेज्ड वहाँ ट्रीटमेंट दें, उनको ग्रेटेस्ट पासपोर्ट दें. क्या ग्रेटेस्ट पासपोर्ट ये चंद हम लोगों जैसे हैं? व्हाई नॉट गिव देम ग्रेटेस्ट पासपोर्ट, रिकॉग्नाइज देम, दे कंट्रीब्यूटिंग इन योर इकोनॉमी. उनको आप एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का लाइसेंस दें, उनको आप प्रिविलेज ट्रीटमेंट दें. दी हाई कमीशंस एंड एम्बेसीज व्हेन दे गो, यू शुड रिस्पेक्ट देम. यू गिव देम फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन एट योर एयरपोर्ट्स. सो वी आर गोइंग फॉर ऑल दीज थिंग्स. इस तरह वुमेन एम्पावरमेंट इज इंपॉर्टेंट फोकस इन दिस बजट. एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फोकस, ऑल्दो एजुकेशन हैज बीन डिवॉल्व सब्जेक्ट. एंड इसकी डेवोल्यूशन के साथ, इफ यू रिकॉल 18th अमेंडमेंट के साथ देयर वाज NFC अवार्ड जो रिवाइज हुआ. उससे पहले द फेडरल गवर्नमेंट यूज्ड टू हैव 5% कट एज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस. ये अब्दुल्ला यूसुफ बैठे हुए हैं, काटते रहे FBR में बैठ के जो डिजिटल पूल होता था. और 57.5% यूज्ड टू गो टू द फेडरल गवर्नमेंट, द अकाउंट नंबर 1. 42.5 यूज्ड टू गो टू द प्रोविंसेस. Since you devolved the subject, you abolished the concrete list in 2009. I was part of that as senator and parliamentary leader. तो आपकी फिजिकल स्पेस आपने की. अनफॉर्चुनेटली वो फिजिकल स्पेस तो चली गई, बट द एजुकेशन के ऊपर आप अभी भी जिस तरह खर्च होना चाहिए सूबों में वो खर्च नहीं हो रहा. एज ए कॉन्सिक्वेंस द फेडरल गवर्नमेंट हैज बीन फोर्स्ड टू कीप स्पेंडिंग. इस बजट में भी वी हैव ऑलमोस्ट 120 बिलियन रुपीज फॉर एजुकेशन, बट करना पड़ेगा. इसी तरह हेल्थ की है
Construction industry is another one where a lot of economic activity is generated and it's possible. We have introduced some incentives there. Energy के ऊपर we have focused ourselves. तो ये हमारे सारे जो incentives हैं, we have इसके बावजूद बड़ा modest हमने target रखा है कि which is 3.5%. करीबन तीनों एरिया सर्विसेज, industry and agriculture, it should give us 3.4, 3.5 of detail है, but average is 3.5% GDP growth. Now मुझे अभी मैं जब आया तो मगरिब का टाइम था, तो मैंने पूछा आपके प्रेसिडेंट साहब से और तोला साहब से, मैंने कहा यार कोई लिस्ट है कि जो हमारे साथियों ने अपनी तकारीर में, अपनी डिस्कशंस में, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम ऑन जूम जिन्होंने ज्वाइन किया, कि जिन्होंने कोई अनोमलीज, कोई इश्यूज फ्लैग किए हों, तो वो लिस्ट तो कोई नहीं. आई विश के इट वॉज देयर सो आई कुड एड्रेस प्रैक्टिकल, क्योंकि वो मैं लिखी लगाई तकरीर तो मैं पढ़ दूंगा, कोई मसला नहीं. आई थिंक लेट्स बी प्रैक्टिकल, इट शुड बी इंटरैक्टिव सेशन. तो मुझे इन्होंने एक चीज़ बताई है, उसका मैं जवाब देता हूँ. यू ओपन द फ्लोर. मुझे ये कहने लगे जी कि ये कह रहे हैं कि 7,200 का जो बजट इसका फेडरल टैक्सेस का जो टारगेट अभी रिवाइज एस्टीमेट है, उसके मुकाबले में हुकूमत ने बहुत ज़्यादा 9,200 का रख दिया. नाउ आई एम अमेज्ड. ये बैठे हुए हैं फॉर्मर FBR चेयरमैन. इट इज़ वर्कड आउट साइंटिफिकली. आपकी अगले साल की पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो जॉइंट वर्किंग है, वो कहती है कि पाकिस्तान में 21% अगले साल इन्फ्लेशन होगा, द फिस्कल ईयर 23-24. अब ये बाय द वे ये CPI है. इस वक्त भी जो 11 महीने के नंबर्स है वो 29% है. यू नो यू रीड समवेयर 35%, 39%, वो मंथ टू मंथ इस तरह होता है. योर 11 months cumulative number is 29%. Your core inflation, which actually matters and that is more important, that is right now 16 से 17% इन देहातों में, रूरल एरियाज में, और आपके शहरों में इट इज़ 19 से 20. यू कैन से एवरेज 19.5. जो CPI इस वक्त 29 से 11 महीने, उसके अगेंस्ट उन्होंने 21 दिया. दोस्तों कोर इन्फ्लेशन शुड बी वेल बिलो 4-5%, कम अज कम, इफ नॉट 8-9% इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर. उसको जस्ट दैट 21% इज नंबर 1 देयर. जो हम कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको आज सिखा ही दूँ, शायद आप में से फ्यूचर में कोई चेयरमैन FBR बन जाए. हाउ वी वर्क आउट द नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्शन. दिस इज 21%, एंड देन यू ऐड द ग्रोथ, GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज 3.5. ये हो गया 24.5%. और 24.5% को आप 72 से जरा लगा के फैक्टर तो निकाल लें कि क्या निकलता है. तो यू ओनली नीड अबाउट 223 बिलियन मोर ऑफ एडिशनल अमाउंट टू रीच 9,200. जी अली साहब तुसी कर रहे हो, की निकले है? यू आर क्लोज टू 9,000. नो मैं ये इतने परेशान थी, लोग ये कह रहे, मैं कहा यार तुसी नहीं समझाया इन्होंने कि किस तरह कैलकुलेट होता है. सो शायद इन्होंने अभी सोचा नहीं कि ये फ्यूचर में FBR में चेयरमैन लगेंगे, और जो बैठा हुआ उसको पता है, अब्दुल्ला यूसुफ को पता है. सो यू सी वी हैव अ साइंटिफिक, देन यू एक्चुअली ऐड द